Hello and welcome to the final mock analysis. So this is the final EARC mock analysis for CAT 2024. So we are going to review MCAT 2501 VARC section. So let's dive right in. First passage, photography, chiefly facial photography, was first used for eugenic purposes in 1878 by Francis Galton, 5 years before he coined the term eugenics, to describe a new science of human breeding intended to improve the racial pedigree of the British and reverse the effects of degeneration. Okay, this passage looks all right. फोटोग्राफी से कैसे आप यूजेनिक मींस गुड जीन कैसे करोगे और कैसे रेशियल पेडिग्री ब्रिटिश लोगों की इंप्रूव करोगे, तो ठीक है, विल सी। दूसरे पे देखते हैं क्या है। मॉडर्न कैपिटलिज्म कैन बी ब्रोकन इनटू टू मेजर एरियाज, मैनेजरियल कैपिटलिज्म, शेयर होल्डर वैल्यू कैपिटलिज्म। ठीक है, दिस इज बेसिकली बिजनेस कैपिटलिज्म की बात कर रहा है, तो दिस लुक्स इजी, आई प्रेफर दिस। पहले उसके बाद में इन द सेंचुरी सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगन देयर विल ब्लडियर कॉन्फ्लिक्ट्स, wars that seem more pointless and less conclusive, but the First World War remains distinctly fine. ठीक है, First World War fine. Then we come to the last one. BPR is a business management strategy focusing on analysis and design workflows and business process within an organization. Okay, so this particular mock seems like one where we can do all the four RCs potentially. There is, it doesn't seem to be doesn't seem to be any kind of challenge in handling any of these. तो मुझे लगता है चारों करनी चाहिए मुझे, तो ठीक है, इसको हम करेंगे। पहले हम एज यूजुअल लेट्स रिव्यू द BA section. So experiments were done by the steadiest hands in the darkest labs. कौन से experiments we don't know, so we can't start with this. Theories of weirder predictions, the theories, कौन सी theory we don't know. Quantum mechanics is one of the science's most successful theories. Okay, so 3 से start कर सकते हैं. They happen, so we don't know what happens. So 3 से start कर देंगे. Quantum mechanics is one of science's most successful theories, superseding Sir Isaac Newton's classical physics. ठीक है भाई. The theories, weirder predictions, spooky connections, tunneling and like are not part of people's everyday experience. They happen. Experiments were done. तो ये टेंस से आपको समझ में आना चाहिए कि इस 3-2 के बाद में 4 पे जाना चाहिए. We can't go at to 1, which is in past tense, and this is general simple present tense. So weirder predictions are not part of people's everyday. They happen at a microscopy level and was thought only under precisely controlled conditions. 4 पे आ जाएंगे, and then we'll go to 1. Experiments were done by the steadiest hands in darkest labs. So कैसे ये जो थियोरी थी, ये बता रही थी कि जो थियोरी के प्रिडिक्शन होते हैं ये लोगों के पार्ट ऑफ एवरीडे एक्सपेरिमेंट नहीं होते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स वर डन बाय द स्टेडियस्ट हैंड्स. ओके, ठीक है, 3241 इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था. He's almost unique in that way. He कौन है भाई? Orwell's main relevance in the US was forged during the Cold War, Warlock says. So he's unique in that way. यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है unique in that way. Democratic socialist and anti-Stalinist, Orwell was able to represent the contradictions of the communist ideology, the gap between its self-image and its reality. So was he unique in that way? हो सकता है, शायद ना भी हो, कुछ नहीं पता हमें. 1984, an animal farm embedded in US curriculums and widely taught in decades since. With the end of the Cold War, Orwell's writing could be claimed by many different people who were arguing against what they saw as various forms of political. It's very hard to think of another writer who is so much admired across all parts of political spectrum, Taylor says. Okay, it's very difficult to think of another writer who's so much admired across all parts of political spectrum. He's almost unique in that way. Adapted to the need of a broad range of readers, 1984 took on a life beyond its authors and its pages. So, in her forthcoming book, this lady explores use of 1984 as a tool of resistance. So, from here onwards, this book of George Orwell has taken the limelight, and therefore यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ही कौन है यहाँ पे, तो 1984 की बात हो रही है, तो इसलिए 4 में तो बिल्कुल नहीं आ सकता. 1 में मेन रेलेवेंस वाज फॉर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इज यूनिक इन दैट वे. ऐसा कुछ नहीं है कि ही वाज यूनिक कि उसकी रिलेवेंस 4 जो कोल्ड वॉर में, तो इसको भी हटा देते हैं. आपके सामने 2 बचे हैं ऑप्शन, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड एंटी स्टालिनिस्ट. Orwell was able to represent the contradictions. He's almost unique in that way. 1984 embedded, widely taught with the end of the Cold War. Orwell's writing would be claimed by many different people arguing with this or different. It's very difficult to think of another writer who is so much admired. So across all parts of politics, he's unique. Unique in that way looks much better that he's admired in across all parts of political spectrum, whether it is leftist or rightist.
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेनी डिफरेंट पीपल who are arguing it's very difficult to think नहीं सेकंड में represent the contradiction of communist ideology, the gap between its self-image and its reality. So was he unique in this way? I think he was unique in this particular way, adapted to the needs of a broad range of readers. तो ये उसी चीज को फिर is almost unique in that way. So 3 में मुझे ये better लग रहा है rather than 2. But yes, this was a difficult question wherein you can be torn between 2 and 3. Right? Orwell was able to represent the contradiction of communist ideology, gap between its self-image and its reality. Or he was so much admired. So, अगर आप टेंस भी देखेंगे, it's very difficult to think who is so much admired. He is almost unique in that way. तो टेंस भी यहाँ पे मैच हो रहा है. टेलर सेज यहाँ पे थोड़ा टेंस की भी गड़बड़ है, इसलिए 3 is the better option. Okay, difficult question, no doubt. 2 और 3 में difficult choice थी. Okay. What's truly fascinating is just as with Wakanda's vibranium, these early civilizations. The early civilization कौन सी है? In the Marvel Cinematic Universe, Black Panther's fictional nation of Wakanda has an industry that revolves around its abundance of vibranium. Okay, for those who have not yet probed the secrets of galaxy, a meteor shower would undoubtedly meteor shower, a blessing, and thus any collected meteorites would hold an inherent connection to divinity. यहाँ पे कुछ vibranium और इस पे कोई बात नहीं हो रही, mineral की बात नहीं हो रही. It is evidence that the early Inuits of Greenland tried their hand at mining meteorites that fell in the Cape York area, while the Descubraidora meteorite discovered in the present day had a copper chisel lodged in a suggesting area had its own share of intrepid meteor miners. Meteor miners की बात हो रही है, तो क्या ये civilizations इन्हीं की बात कर रहा है? कर सकता है. The mining of meteorites is not merely a convention of comic books, but an actual practice that stretches back thousands of years. Okay, so इससे start जरूर कर सकते हैं. The mining of meteorites is not merely a convention of comic books. So यहाँ से start कर सकते हैं. In the Marvel Cinematic Universe, Black Panther's fictional nation and industry that revolves abundance of vibranium, a rare and powerful metal harvested from the massive meteor. तो वकांडा जो एक फिक्शनल नेशन है, जिसने ब्लैक पैंथर देखी है, वो तुम्हें पता होगा कि जहाँ पे बहुत सा वाइब्रेनियम की अबंडेंस है, एक रेयर और पावरफुल मेटल है जो कि मैसिव मीटियोर से उन्होंने हार्वेस्ट किया है. तो माइनिंग ऑफ मीटियोराइट वही है. इज नॉट मेरली अ कन्वेंशन ऑफ कॉमिक बुक्स बट एन एक्चुअल प्रैक्टिस. तो ये प्रैक्टिस थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले भी थी, और इसके लिए हमें अब यहाँ पे आ गया. देयर इज एविडेंस दैट द अर्ली इनुइट्स ऑफ ग्रीनलैंड ट्राइड देयर हैंड. सो 4 पे चले जाएंगे कि अर्ली इनुइट्स ने उसको केप यॉर्क एरिया में माइन किया था, और ये डेसू ब्राइडोरा लोगों ने इसको मैक्सिको में भी किया था. What is truly fascinating is that these early civilization has justified readability. This 2541 becomes a paragraph, and 3 doesn't have any place in this particular passage. Again, I would rate it a little difficult because लंबे लंबे sentences से थोड़ा time लग सकता है. Okay. Early in the growing season, female thrips, perhaps an eighth of an inch long, arrive at an acacia plant and begin eating one of its leaf-like stems. In the near deserts in eastern Australia, acacia trees dot the landscape from daintily ornamented with small football-like shapes inside of which hide world's 2 known species of eusocial thrips. Okay, some of her offspring. Stem will throw you the stem की बात यहाँ पे भी हुई है. Once that time is passed, so we need to figure out which time we are talking about. यहाँ पे कोई time की बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई है, तो this looks suspicious. So यहाँ से कहाँ स्टार्ट करें? इन द नियर डेजर्ट से स्टार्ट कर देते हैं. 2 से अकेसिया ट्रीज जो है वो बहुत सारे हैं, और डेंटली मीन्स वेरी प्रिटली. दे आर ऑर्नामेंटेड बाय स्मॉल फुटबॉल लाइक शेप्स इन ट्रीज के ऊपर, उसके अंदर हाइड कर रहे हैं 2 नॉन स्पीशीज ऑफ यूसोशियल थ्रिप्स. तो ये जो थ्रिप्स हैं, ये फीमेल थ्रिप्स अर्ली इन द ग्रोइंग सीजन, ये 8 ऑफ एन इंच लॉन्ग होती है. ये अकेसिया प्लांट में आती है और उसकी लीफ लाइक स्टेम को खाने लगती हैं. The stem will slowly develop into a gall in a football-like shape. ये इसके आसपास एक गॉल बन जाता है, creating a food-full cavern in which he and her offspring can live. तो ये यहाँ पे safely अपने predators से छुप के रह सकते हैं. Some of her offspring, तो some of her offspring की बात हो गई. उसके जो offspring है, develop large front legs, armed with dagger pointing inward. With these soldiers used to kill those who threaten. तो इनके अगर कोई घर में कोई घुसने की कोशिश करता है तो उसको threaten to kill हो जाता है. So very beautifully 2, 1, 4, 3 becomes a paragraph. And fifth, as we had kind of become suspicious कि once that time is passed, कौन सा टाइम हमें नहीं पता, कौन सा टाइम की बात है, इसलिए this is the odd one. Again, moderate to difficult बोलूंगा मैं इसको, easy तो नहीं बोलूंगा, moderate to difficult है. Okay. More than 200 years ago, Benjamin Franklin coined
Now famous dictum that equated passing minutes and hours with cheating 3 pounds, according to the formula derived by A. and Walker. 3 minutes of brushing one's teeth works out to the equivalent of 45 cents. This reduction of time may extend practice observation, but the commodification of time is genuine result from a racial alteration in how we view passage of events. तो टाइम इज मनी जो हम बोलते हैं, उसी के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से 200 साल पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस चीज को कहा था कि टाइम इज पासिंग मिनट्स और आवर्स को उसने शिलिंग्स और पाउंड से सब्स्टिट्यूट कर दिया था, और उन्होंने कुछ टाइम वैल्यू भी निकालनी थी उसको, और ये भले ही एक एक्सट्रीम हो लेकिन कमोडिफिकेशन ऑफ टाइम इज जेन्युइन। और इससे हमारा ये कैसे आया, क्योंकि हमारा हाउ यू व्यू पैसेज ऑफ इवेंट्स का में रेडिकल ऑल्टरेशन हो गया है, चेंज हो गया है। फंडामेंटल ह्यूमन ड्राइव्स हैव नॉट चेंज्ड hundreds of thousands of years ago. Much of what we are about centers on the same impulse to eat, procreate, fight, or flee that motivated Fred Flintstone of Flintstone fame. Despite the constancy of these primal urges, human consciousness has experienced appeal after upheaval in a period since our hunter-gatherer forebears roamed the savannas. Perhaps the most profound change from stone to information revolve around our subjective experience of time. तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक ड्राइव्स हैं, वो चेंज नहीं हुई, वो हमारी हजारों सालों से, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर से सेम ही है। लेकिन जो हमारा टाइम का जो एक्सपीरियंस है, जो सब्जेक्टिव है एक्सपीरियंस ऑफ टाइम, उसमें प्रोफाउंड चेंज हो गया है। दैट कैन बी सीन बाय द वे वी हैव स्टार्टेड कमोडिफिकेशन ऑफ टाइम। Okay, so let's look at the options. Commodification of time stems from a view in which time is a subjective experience. This major change took place sometime during the long transition from some stone age. ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें काफी चीजें मिसिंग है। इसमें ये भी नहीं पता रहा कि हमारी बाकी की अर्जेस जो थी वो सेम है, और बाकी की चीजें सेम है, लेकिन टाइम का जो हमारा व्यू है वो प्रोफाउंडली चेंज हुआ है। तो टाइम इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, दिस मेजर चेंज, ऐसा बिल्कुल ही गलत है, तो दिस इज रॉन्ग। Time may not be literally money, but it certainly has become a commodity. The most profound change to have occurred from the time that our ancestors lived till now centers around our subjective experience of time. Again, this is quite incomplete. On one hand, our most fundamental needs have not changed since the Stone Age, okay? But on the other, our conception of time has undergone a radical revolution. This has led to the phenomena like commodifying time and putting a price on it. Okay, now here, this first part is all right. कि जो हमारी fundamental needs है वो change नहीं हुई है, right? But conception of time has undergone a radical revolution, ये तो ठीक है, लेकिन this has not led to a phenomenon like commodifying. तो इसमें कोई cause and effect नहीं है। यहाँ पे बता रहा है कि commodification of time जो हुआ है, ये हम देख सकते हैं कि हमारा जो subjective experience of time उसका इतना profound change हुआ है। तो there is no cause and effect relationship. This particular option C gives you a cause and effect, that this is the cause, it has undergone say change, therefore we are commodifying time and putting a price on it. So therefore this cause and effect thing is wrong. A quantum shift in how we view the movement of events and changes in our subjective experience of time typify this age, ठीक है भाई, where even our basic urges have remained the same, we equate time with money. So this looks much better and therefore we will mark it. Again, I would say this was moderate to difficult question ही बोलूंगा, because इसमें you would have got confused between a couple of options here, so थोड़ा सा time लग सकता है. However, after a new election was called and barricades were dismantled, Stiegler became disenchanted with traditional Marxism as well as the political trends circulating in France at the time. Okay? Stiegler's path to becoming the preeminent philosopher of our digital age was anything but straightforward. However, का तो कोई sense ही नहीं है यहाँ पे. He was born, ठीक है, in this place in 1952. By the time he was 16, participating in the revolutionary wave, a radical uprising of students and workers forced President Charles de Gaulle to seek temporary refuge across the border in West Germany. Okay? However, after new election, Stiegler became disenchanted. तो अभी ये पहली बात तो, where has he become even enchanted with Marxism? हुआ है क्या? हो सकता है वैसे. By the time Stiegler participated in the revolutionary wave when the radical uprising of students forced President Charles de Gaulle to seek temporary refuge across the border in West Germany, the left in France seemed hopelessly torn between the post-war existentialism. Neither of these options satisfied Stiegler because neither could account for the rapid rise of a new historical force, which is electronic technology. So neither of these, अगर हम इसको 3 में लगाते हैं, Stiegler became disenchanted with traditional Marxism as well as political trends circulating in France at the time. Neither of these options, इसमें options कहाँ हैं?
इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है. He became disenchanted with A as well as B. So there is no choice that he was supposed to make, or there is no option which he was being kind of looking at. Whereas if we put it in two, the left in France seemed hopelessly torn between the post-war existentialism and anti-humanism of so neither of these options. So अगर थ्री में हम इसको रख देंगे, so we will disrupt these neither of these options, because ये जो options हैं वो ये है, torn between post-war existentialism of Sartre and anti-humanism of Louis Althusser. तो ये अगर आप थ्री में इसको रखने से ये ब्रेक हो जाएगा, इसलिए थ्री पे नहीं आएगा ये. और फोर में तो आने का कोई सेंस है ही नहीं इसको, तो इसलिए टू में ही जाएगा. इनिशियली वी थॉट टू में शायद ना आए, लेकिन ये टू में ही बेस्ट फिट होगा. Right? He was born in this place. By the time he was 16, he participated in revolutionary wave and a radical uprising force. Charles de Gaulle, however, after new election was called, okay, so Charles de Gaulle was the president and he had to seek temporary refuge across the border. So new election call किया जाएगा ना, when president runs away. So barricades were dismantled. He became disenchanted with traditional Marxism as well as political traits. ठीक है. So second में बहुत बढ़िया fit हो रहा है. Three में fit करने से ये option वाला जो है ये violate हो जाएगा. Alright. Again, a little difficult question. No doubt. So VA part was difficult here. The Indian fashion industry has made a significant impression in the international market, is becoming popular in the country too. Till a few years ago, Indian designers were making costumes. Generally, Western, often fit to be worn on the way of the ramp, exorbitantly expensive, but it is heartening to see that they are now concentrating Desi outfits. Sari, lehenga. This is not restricted to women alone. Welcome training for men, but there is a lot to be done in the good market. But most of the designers, ठीक है. तो पहले ये women के लिए बनाते थे डिजाइनर क्लोथ्स, या सिर्फ ये वेस्टर्न को कॉपी करा करते थे. राइट. अभी मेकिंग वेस्टर्न थे, राइट, ओनली टू बी फिट ऑन रैम्प, और बहुत एक्सपेंसिव थे. लेकिन उन्होंने अब देसी आउटफिट बनाना शुरू कर दिया है, और ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं बनाते, मेन के भी बना रहे हैं. लेकिन अभी भी इनकी प्राइसेस हाई हैं. तो ये सारे पॉइंट्स इसमें कैप्चर्ड है. तो वी हैव टू फिगर आउट वन ऑप्शन जहाँ पे ये सब. तो इंडियन डिजाइनर इंस्पायर्ड बाय द फैशन इंडस्ट्री हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एट लो प्राइसेस, और द प्राइसेस शुड बी इवन लोअर. बिल्कुल गलत है. पहले वेस्टर्न करते थे, विमेन मैन कुछ भी नहीं. मॉडर्न आउटफिट्स आर एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस वर द नॉर्म, while prices have reduced prices. इसमें कोई डिजाइनर की बात ही नहीं हुई है, इसको हटा दो. Indian fashion designers who did until a few years ago were making expensive have begun to make traditional costumes for both men at lower. However, the rates still cater, they should be within reach. This looks all right. A few years ago, the Indian fashion industry was concentrating on expensively modern clothes. Now, thanks to the influence in traditional costumes that prices everybody can afford, ये तो गलत ही बोल रहा है बिल्कुल ही. तो इसलिए ये तो they are not affordable है. So C was the easy choice here. Therefore, this question is easy. No doubt, this is an easy question. Okay. However, the high prevalence of dementia in the elderly can overshadow the importance of diagnosis in the younger patient, but it can also, dementia is a major public health concern that is growing burden owing to an aging society. ठीक है. However, the high prevalence of aging society में ज़्यादा होता है dementia. तो high prevalence वहाँ है, तो इसका overshadow the importance of occurring in younger patients. 4 और 1. Young onset dementia can present a substantial diagnostic challenge. तो बचपन में अगर हो जाए तो मुश्किल है इसको डायग्नोस करना, but it can also provide important biological insight that might be applicable to the more common presentation. So 2 यहाँ पे आ गया. So this was again a easy question. So we found 3 questions easy, 1 moderate to difficult, and then quite a few difficult. तो इसमें एक अच्छा अटेम्प्ट जो है, अगर आपके 4 या 5 सही रहते हैं तो you've done very good. Whole point is don't waste more than 10 minutes on these is what I suggest. Let's now go to the passages. तो लाइन से कर लेते हैं. पैसेजेस में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे करेंगे. लेट्स डू इट इन अ सीक्वेंस. ऑलराइट. Photography, chiefly facial photography, was first used for eugenic purposes in 1878 by Francis Galton, 5 years before he coined the term eugenics. To describe a new science of human breeding intended to improve the racial pedigree of the British and reverse the effects of degeneration. तो ये पहली बार फ्रांसिस गैल्टन ने 1878 में फेशियल फोटोग्राफी को पहली बार यूज किया था. क्यों? उनका पर्पस था एक कि वो यूजेनिक मीन्स गुड जीन्स. वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो लोग हैं उनकी रेशियल पेडिग्री इंप्रूव हो, एंड जो डी जनरेशन हो गया है सोसाइटी में उसके इफेक्ट्स रिवर्स हो जाए. मतलब आप अच्छे अच्छे चेहरे जो हैं उनकी फोटो खींचो और उन्हीं के साथ प्रोक्रिएट करो ताकि रेशियल पेडिग्री बढ़े ब्रिटिश की. To understand Galton's imperative to control human breeding through eugenics, it is important to consider the social, economic, and political circumstances leading up to this moment.
As the world's first industrialized power and nation with the largest colonial empire, Britain during the first half of the 19th century was experiencing unprecedented growth, which in turn generated immense wealth and material affluence. Britain's population swelled under these prosperous conditions and continued to increase until the social and environmental costs of such rapid change began to tell. तो ब्रिटेन हमें पता है कि सबसे पहले वर्ल्ड का इंडस्ट्रियलाइज पावर था, वर्ल्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज पावर, एंड इट वाज वेरी वेल्दी, इट वाज द लार्जेस्ट कॉलोनियल पावर. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में इतनी प्रॉस्पेरिटी हो रही थी, इतनी अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ थी, इतनी वेल्थ जनरेट हो रही थी कि वहां पे ऑब्वियसली जहां पे वेल्थ जनरेट होती है, जहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होती है, वहां पे लोग इधर उधर से सब जगह से आ जाते हैं. राइट, जैसे यूएस में इमिग्रेंट्स कम फ्रॉम ऑल ओवर बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू मेक अ गुड लाइफ देयर. सिमिलरली ये फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में सेम कंडीशन वाज विद ब्रिटेन, कि वहां पे पॉपुलेशन उनकी बढ़ती चली जा रही थी, और धीरे धीरे उस बढ़ती पॉपुलेशन के सोशल और एनवायरमेंटल कॉस्ट जो है वो सामने आने लगे. मोस्ट नोटेबली द माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम रूरल एरियाज एंड ओवरसीज टू अर्बन सेंटर्स थ्रूआउट ब्रिटेन लेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरक्राउडिंग, पॉवर्टी, क्राइम एंड इल हेल्थ, पर्टिकुलरली अमंग द लोअर क्लासेस. और इसका इम्पैक्ट देखा गया कि जो माइग्रेशन था वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में हो रहा था, और ओवरसीज से बाहर से लोग आ रहे थे थ्रू आउट ब्रिटेन, सो दैट ओवर क्राउडिंग हो रही थी, पॉवर्टी, क्राइम और इल हेल्थ बढ़ रही थी लोअर क्लासेस में. तो ये पैराग्राफ में बैकग्राउंड सेट किया जा रहा है कि ये जो फ्रांसिस गैल्टन ने फेशियल फोटोग्राफी शुरू की थी यूजेनिक पर्पज से, तो उसको कैसे स्टार्ट हुई, व्हाई, व्हाट वर द रीजंस दैट लेड टू दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट. तो उसके लिए उसने बताया कि जो ब्रिटेन की सोसाइटी थी वो इतनी डेवलप हो गई थी, इतना वेल्दी थी, कि इधर उधर से काफी लोग आ रहे थे वहां पे, और उसके कारण क्राइम, पॉवर्टी, इल हेल्थ वगैरह बढ़ती चली जा रही थी. In the 1860s, when the liberalist views of John Stuart Mill and Jeremy Bentham were dominant, many blamed government policies for these deteriorating conditions. By the 1880s, however, when Darwin's theory of natural selection and Herbert Spencer's concept of survival of the fittest had begun to gain currency, many among the educated class had become convinced that Britain's urban decay had a more sinister origin. अब हुआ क्या कि लोग पहले तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगे, क्योंकि लिबरलिस्ट व्यूज उस टाइम पे डोमिनेंट थे. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो थी कि आप ये सब माइग्रेशन होने दे रहे हो, आप ये सब ओवर क्राउडिंग, पॉवर्टी, क्राइम, इल हेल्थ होने दे रहे हो, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द गवर्नमेंट्स. बट उस टाइम पे जो थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी डार्विन की, जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव, या ओनली द बेस्ट ट्रेड्स गेट्स पास्ड ऑन टू योर ऑफस्प्रिंग, वो आ गई थी, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सब चीजें आने लगी थी. तो काफी लोग एजुकेटेड क्लास में ये सोचने लगे कि जो ब्रिटेन का अर्बन डिके हो रहा है, यहाँ की जो पॉपुलेशन में पॉवर्टी, क्राइम, इल हेल्थ बढ़ रहा है, इसका एक सिनिस्टर ओरिजिन है, मतलब कोई ना कोई इसका एक इविल ओरिजिन है. At this time, some scientists were beginning to perceive a dark side to Darwin's evolutionary hypothesis, speculating that the artificial conditions of urbanized society might, in fact, encourage the poorest, not the fittest, hereditary traits to be passed from one generation to the next. This concept became popularly known as racial degeneration. तो कुछ साइंटिस्ट जो थे, उन्हें लगा कि ये जो डार्विन की थ्योरी है, एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, जिसमें कि ये है कि जो बेस्ट ट्रेड्स पास ऑन हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो इस तरह की आर्टिफिशियल कंडीशन अर्बनाइज सोसाइटी की, इनफैक्ट इसमें फिटेस्ट नहीं बल्कि पुअरेस्ट ट्रेड्स पास हो जाएंगे फ्रॉम एक वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. मतलब अगर कोई इल हेल्थ है तो वो पास ऑन हो जाएगी, जो अच्छी चीजें वो नहीं होंगी. ओवर क्राउडिंग तो ठीक है, पॉवर्टी पास हो जाएगी, क्राइम क्राइम अगर करता है तो वो क्राइम भी हेरिडिटरी ट्रेस में पास हो जाएगा. इसको बोलते हैं रेशियल डीजनरेशन. तो इस तरह से जो रेस है, आने वाली नस्लें जो है वो डीजनरेट हो जाएंगी. तो इस तरह की वहां पे साइंटिस्ट की कई सारी थियरीज आने लगी. The failure of successive liberal governments to solve the urban problem merely added fuel to this idea that the rise of crime and ill health among the lower class was a result of decline in the quality of nation's blood stocks. तो जो सक्सेसिव लिबरल गवर्नमेंट से उन्होंने ट्राई करा इसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम, लेकिन हुआ नहीं. तो इससे और लोगों को आइडिया, ये उनका फ्यूल होगा कि हो गया कि क्राइम और इल हेल्थ जो बढ़ रहा है, इट इज बिकॉज उनकी ब्लड जो लाइन है, जो ब्लड स्टॉक्स है, मतलब उनकी जो पेडिग्री है, उनकी जो नस्लें हैं, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है, डिटीरियोरेट हो रही है, उनकी क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है. The theory was reinforced by mounting anxiety about the effects of race mixing on genetic vitality of the nation. रेस मिक्स हो रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, वो ब्रीड कर रहे हैं वहां के लोगों से, तो उनकी रेस और डाइल्यूट हो रही है, प्योर ब्लड धीरे धीरे खत्म हो रहा है उनके अंदर. एज अ रिजल्ट ऑफ recent waves of immigrants from Ireland, Europe, British population was becoming increasingly diverse. At the same time, there was a gathering scientific impetus to distinguish the various classes and races now subjugated to the British Empire. तो उन्होंने कहा कि जो रेसेस आ रही हैं वहां से, और उसी टाइम पे और भी उसमें काफी सारे एफर्ट्स होने लगे कि जो अलग अलग क्लास और रेस हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आते हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश किया जाए. हमें द imperialistic project had required ignoring both class and racial differences within Britain and portraying the inhabitants of British colonies as savage and technologically backward. तो अभी तक क्या हो रहा था कि वहां पे ब्रिटेन का जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट चल रहा था, इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें क्या करते थे वो
कि जो ब्रिटेन की कॉलोनीज में लोग हैं जिनको उन्होंने जिनके ऊपर उनका राज चलता था, उनको तो वो बारबरियन और सावे जो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड बताते थे, लेकिन अपने यहाँ के जो रेशियल और क्लास डिफरेंसेस है उसको वो अभी तक इग्नोर किया हुआ था, अभी तक उन्होंने। वंस द सब्जुगेशन ऑफ पीपल ऑफ कलर वॉज कंप्लीट, तो अब एक बार जब ये इन्होंने जो बाकी के जो जैसे इंडिया, अफ्रीका, एशिया, इधर लोगों को जब उन्होंने अपना राज वहां कर लिया कंप्लीट और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, तो impure races within Britain, in particular the diasporic and Celtic population comprising Jews and Irish, were proved most difficult to assimilate into the predominantly Protestant Anglo-Saxon culture, became the main focus in discussion of racial contamination. तो उन्होंने एक बार जब अपना जो कोलोनाइजेशन वाला जो पार्ट था, इंपीरियलाइजेशन वाला पार्ट था, उसको इंस्टीट्यूशन में कर लिया, तो अब उनकी फोकस आ गया जो हमारे यहाँ पे, उनके यहाँ पे जो डायस्पोरिक जो बाहर से लोग आए हुए हैं, सेल्टिक पॉपुलेशन है, चाहे ज्यूश, आयरिश, जो कि वहाँ पे असिमिलेट नहीं हो रहे, मतलब वो वहाँ का कल्चर जो है उसमें मिक्स नहीं हो रहे पा रहे थे, तो इनको उन्होंने डिस्कशन ले आया रेशियल कंटेमिनेशन. It was amidst this period of great social and economic flux that Galton's scientific research and experiments with eugenic photography were conducted. Driven by a desire to know more about the workings of heredity and its role in degeneration, he sought a reliable means to identify the types of people responsible for the racial contamination and racial uplift, for which he invented the technique of composite photography. तो उसने कहा कि इसी टाइम पे, ऐसे टाइम पे यूजेनिक फोटोग्राफी जो थी वो आई. अ, इसको ये पता करना था कि हेरिडिटी कैसे काम करती है और उसका क्या रोल है डी जनरेशन में. तो उसने कहा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर रेशियल कंटेमिनेशन, और जिससे रेस अच्छी होती है, जिससे रेस खराब होती है, और उसके लिए कॉम्पोजिट फोटोग्राफी आई. वेरी इंटरेस्टिंग पैसेज दिस इज अबाउट how this eugenics led racial photography, facial photography started, it came into picture, because ब्रिटेन जो था उस टाइम पे उनके लोगों को लग रहा था कि जो हमारी रेशियल डीजनरेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इमिग्रेंट्स which have led to rise in poverty, crime, ill health, and those genes are getting passed on to the next generations, and therefore the whole blood stock is deteriorating in quality. And therefore there was an apprehension, और इस दौरान और सरकार जो थी वो कुछ कर नहीं पा रही थी, इसलिए तो लोगों ने कहा कि ये यूजेनिक्स जो है, गैल्टन ने कहा कि इसको लेके आते हैं, इससे हम रिकग्नाइज करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन लोग हैं जो हमारे रेस को खराब कर रहे हैं, कौन लोग अच्छा कर सकते हैं फोटोग्राफी के थ्रू. And therefore we will resolve and solve this issue of racial degeneration. All right, so I hope the passage is clear, and let's go to the questions. Which of the following could have been an assumption in the speculation which became popular as racial degeneration? तो रेशियल डीजनरेशन जो हो रहा था यहाँ पे, राइट, रेशियल डीजनरेशन जो हो रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आपको ये लग रहा था कि जो फिटेस्ट हेरिडिटरी ट्रेट्स के बजाय जो पुअरेस्ट हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं एक जनरेशन नेक्स्ट से. तो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन रिजल्टेड इन पुअर ट्रेट्स बीइंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. तो ये अजम्पशन है कि ये क्लियरली स्टेटेड है, ये तो क्लियरली स्टेटेड है यहाँ पे. Artificial conditions of urbanized society might in fact encourage the poorest hereditary traits to be passed from one generation to the next. तो ये तो rapid increase resulted in poor traits being passed, तो ये तो specifically लिखा हुआ वहाँ पे, तो ये assumption नहीं है. Criminal behavior and ill health among people are hereditary, and these hereditary traits are common among the lower classes. Yes, this definitely is an assumption, क्योंकि रेशियल डीजनरेशन मतलब क्या है कि उसमें आप क्या चीजें आपको लग रहा है कि पास ऑन हो रही है, क्राइम, पॉवर्टी, इल हेल्थ, ये पास ऑन. अगर क्राइम और इल हेल्थ जो है आप जीन्स में ही पास ऑन कर रहे हैं, तो ये अगर अगर सपोज करो कि इसको हमें वीकन करना है, तो हम कहेंगे नहीं, क्रिमिनल बिहेवियर तो एनवायरमेंट से आता है, वो जीन से थोड़ी आता है. इल हेल्थ भी जो है वो एनवायरमेंट पर डिपेंड करती है, आप कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, कितनी डाइट है आपकी, क्या है. बट देन इसको हेरिडिटरी ट्रेट बना दिया इन्होंने और कहा कि ये लोअर क्लासेस में कॉमन है. सो दिस लुक्स ओके. In any population, only the poorest traits will be passed on over successive generation. This is not the assumption here. In any population वाली बात नहीं हो रही है. यहाँ पे एक स्पेसिफिक है केस, लोअर क्लासेस वाली बात हो रही है यहाँ पे कि पॉवर्टी क्राइम पर्टिकुलरली अमंग द लोअर क्लासेस, राइट. इसी को रेशियल डीजनरेशन कहा गया. Government cannot be held accountable for the increase in poverty. This is not racial degeneration. So correct answer here was B. थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, इसमें कंफ्यूज हो सकते थे हम, मे बी वन और टू के बीच में, बट वन बिकॉज इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड विल नॉट बी द assumption. As can be inferred from the passage, the factor that least contributed to the growth in popularity of the concept of racial degeneration was. तो रेशियल डीजनरेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स थे यहाँ पे. नेचुरल सिलेक्शन था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, और बहुत सारे लोग वहां पे आ गए थे, ये सारी चीजें थी.
द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट द राइज इन क्राइम एंड इल हेल्थ, यस ये भी था. The failure of the successive liberal governments to solve their own merely added fuel to this idea was the result of decline in quality. तो ये तो है. This is definitely a factor. Rapid increase in urban population, definitely that's a factor. Migration of workers from overseas to urban areas, that's also a factor. Unprecedented economic growth which generated immense wealth, this is not a factor. ये तो इसके कारण यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होके आ गए थे, right? So this definitely is not the factor which contributed to the growth in popularity. So this is the correct answer. This was an easier question. This was a little difficult. This was easy, I would say. Which of the following statement, if true, would most weaken the argument for study of यूजेनिक्स एज इंटेंडेड बाय फ्रांसिस गैल्टन? तो इसको हमें वीकन करना है. तो फ्रांसिस गैल्टन ने कहा था कि हम यूजेनिक्स को यूज करके और रेशियल डीजनरेशन को हम अरेस्ट करेंगे. हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कौन लोग हैं जो कि रेशियल अपलिफ्ट कर सकते हैं या रेशियल डीजनरेट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे. तो इसको वीकन करना है आपको. तो द इंक्रीज इन इल हेल्थ एंड क्राइम अमंग लोअर क्लासेस वाज बिकॉज ऑफ लोअर क्लास पॉपुलेशन इंटरमिंगलिंग with immigrants in whose these traces were dominant. ये तो उसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि इंक्रीज वाज बिकॉज ऑफ लोअर क्लास पॉपुलेशन. ये तो यही तो करना चाहता है वो, इसी को तो अवॉइड करना चाहता है. दिस इज नॉट गोइंग टू वीकन, दिस इज स्ट्रेंथनिंग. प्रीवियस साइंटिफिक स्टडीज concerning inheritability of traits related to criminal tendencies were inconclusive. So will this weaken कि जो inheritability of traits related to criminal tendencies and ill health were inconclusive. Okay, रख लेते हैं. Most of the diseases causing ill health during the time were not hereditary in nature, while criminal tendency spread due to prevalent socio-economic. अब आपने यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव रीजन बता दिया कि ये जो यूजेनिक्स करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जो क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं और इल हेल्थ है ये हेरिडिटरी है, ये जीन्स में पास ऑन होता है. लेकिन यहाँ पे इसने बोल दिया कि नहीं, दीज वर नॉट हेरिडिटरी इन नेचर. और क्रिमिनल जो क्रिमिनल टेंडेंसीज है वो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट के कारण होती है. तो नाउ दिस डेफिनेटली देन weakens the case now, because now there is no point in talking about eugenics, because all these traits are not getting passed on. The poor traits, as they call poorest of traits, are not getting passed on, and therefore this definitely weakens. तो ये एक solid reason है जो कि इसको weaken कर सकता है. Incidence of traits related to criminal differs from race to that's okay, that doesn't really matter. So correct answer is C here, not B. Which of the following would most support the use of photography? तो फोटोग्राफी को सपोर्ट करना है आपको. द पीपल हु आर मोर प्रोन टू इल हेल्थ और क्रिमिनल टेंड टू हैव डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स. तो अब आप अगर फेशियल फोटोग्राफी यूज कर रहे हो और आपका पर्पस क्या है कि आप वो फीचर्स आइडेंटिफाई कर लो जो कि उस तरीके के जिनके अंदर ट्रेड्स होते हैं, जो हेरिडिटी होती है, इल हेल्थ या क्रिमिनल टेंडेंसी पास ऑन होती है. सपोज करो कि आपने एक फीचर आइडेंटिफाई कर लिया ए, तो ऑब्वियसली आप उन लोगों को भगा दोगे फिर जिनकी शक्लें ऐसी हैं, राइट? अगर आपके कुछ ऐसे फेशियल फीचर्स हैं जो कि आप जिसको देख के आप बता सकते हो कि इनके अंदर इस तरीके के जीन्स आ रहे हैं या ट्रेड्स आ रहे हैं. दूसरी तरफ भी है जो कि ऐसे चेहरे हैं जो कि लगता है आपको कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इनमें ऐसे ट्रेड्स नहीं आ रहे, तो उनको रखोगे आप. ऐसे लोगों को आप निकालने की कोशिश करोगे. यूजेनिक्स मीन्स व्हाट? यू आर ट्राइंग टू eliminate or preclude the possibility of these people breeding with normal people and therefore further degenerating the race. ये आपका अटेम्प्ट है यूजेनिक्स का. तो ये डेफिनेटली इससे सपोर्ट हो जाएगा अगर आपने फेशियल फीचर्स आइडेंटिफाई कर लिए. दिस लुक्स ओके. पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रेस हैव डिफरेंट फेशियल फीचर्स एंड रेस ऑफ इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय हिज और हर फीचर्स. देखो इसको बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेस, नाउ डिफरेंट रेस की बात नहीं हो रही. बात ये हो रही है कि वो कोई भी एक व्यक्ति है उसके ऊपर रेस के फीचर नहीं चाहिए, हमें वो फीचर चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि इसके अंदर क्रिमिनल और इल हेल्थ वाले फीचर आए कि नहीं आए. तो रेस वाले फीचर नहीं चाहिए. फेशियल फीचर्स ऑफ इमिग्रेंट्स आर डिस्टिंक्ट, दैट्स ओके, दैट्स फाइन. बट कौन से फीचर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इल हेल्थ है या क्राइम है, वो तो नहीं है इसमें. प्रेजेंस ऑफ ट्रेट्स रिलेटेड टू क्रिमिनल टेंडेंसी और इल हेल्थ इन इंडिविजुअल हैज लिटिल कोरिलेशन टू हिज और हर. ये तो सपोर्ट नहीं, तो वीकन कर रहा है. ये तो बिल्कुल ही वीकन कर रहा है उसको. तो इसलिए ये इज द राइट आंसर. So again, if we look at this is moderate to difficult, and this is also moderate to difficult. So passage बहुत interesting था, and questions were also quite good, except one थोड़ा सा ambiguity हो सकती थी एक question, but otherwise questions were good. Okay, let's go to the second passage. Modern capitalism can be broken down into two major areas. First, managerial capitalism began in 1932, defined by the then radical notion the firms ought to have professional management.
Second, shareholder value capitalism began in 1976. Governing premise that purpose of every corporation should be to maximize shareholders' wealth. This is a tragically flawed premise, and it is time we abandoned it and made the shift to a third era, customer-driven capital. तो दो मेजर एरा आई, एक 1932 में आई जिसमें कहा गया कि मैनेजरियल कैपिटलिज्म, दैट मीन्स फर्म्स के जो मैनेज कर रहे हैं वो लोग, उनके ओनर फाउंडर है वो नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए. सेकंड, शेयर होल्डर वैल्यू आया कि कॉर्पोरेशन का पर्पज है शेयर होल्डर वैल्यू की वेल्थ मैक्सिमाइज करना. तो ये भी एक ट्रेजिकली फ्लॉड प्रेमिस है. तो इसे हमें छोड़ के कस्टमर ड्रिवन कैपिटलिज्म पे चले जाना चाहिए. So in 1932, Adolf and Gardiner published their legendary treatise, The Modern Corporation and Private Property, which asserted management should be divorced from ownership. After that, the business world would no longer be dominated by CEO owners like Rockefellers, Mellon, Carnegies, and Morgans. तो ये सारे सारे बहुत बड़े अमेरिका के ओनर फाउंडर्स थे और जो कि अपनी कंपनी चलाते थे. तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब बेसिकली इन लोगों को ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग कर देनी चाहिए. दैट मीन डे टू डे मैनेजमेंट शुड नॉट बी डन बाय दीज ओनर्स. Firms will be run by a new class of professional managers who were more dependable and less volatile. So less volatile means that they will not keep being fickle-minded, changing their minds time to time once the business reaches significant size. This movement was not to be feared. It was a part of a brave new era of economic expansion. तो इसको डरने की बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज है. Brave new era आने वाली है. In 1976, managerial capitalism received a stinging rebuke. Michael and William theory of firm managerial behavior, agency cost, ownership structure, published in the Journal of Financial Economy. Most cited academic business article of all time argued that owners are getting short shift from professional managers who were squandering corporate society resources to feather their own nest. यहाँ पे अब एक 1976 में एक स्टडी आई जो ये कहती थी कि जो ओनर्स थे इनको शॉर्ट शिफ्ट मीन दे वर बीइंग चीटेड काइंड ऑफ बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स. ये लोग कॉर्पोरेट और सोसाइटल रिसोर्सेज को स्क्वांडर कर रहे हैं, मीन्स वेस्ट कर रहे हैं टू फेदर देयर ओन नेस्ट. मतलब ये अपना ही फायदा देख रहे हैं, अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं, उसके लिए ये ओनर्स को धोखाधड़ी कर रहे हैं. दिस वाज बैड फॉर शेयर होल्डर्स एंड वेस्टफुल फॉर द इकोनॉमी, जेंसन एंड मैकलिंग आर्ग्यूड. तो 1932 में उन्होंने कहा था कि आप ओनर्स को सेपरेट करो, प्रोफेशनल मैनेजर्स लेके आओ. फिर 1976 में ये लोग कह रहे हैं कि इससे अब आजकल देखा जा रहा है कि ओनर्स को थोड़ा बहुत चीट किया जा रहा है और जो प्रोफेशनल मैनेजर्स है वो अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं. तो ये ठीक नहीं है. Their critique ushered in a current era of capitalism as CEO, the managers quickly saw the need to swear allegiance to maximizing shareholder value. तो उन्होंने कहा हम तो maximizing करते हैं shareholder value को. Board of directors soon came to view their job as aligning the interests of senior management with those of shareholders through the use of stock-based compensation. तो अब जो CEOs थे, stock-based जो stock options होते हैं जो कि लोगों को दिए जाते हैं as a salary का part, ताकि वो they maximize the shareholder value and in turn their own stocks also will rise high. मतलब आपका इंसेंटिव है कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा करने में कि आपके शेयर भी बढ़ेंगे तो आपका भी फायदा ज्यादा तभी होगा. Have shareholders been actually better off since the displaced manager as the center of business universe? The answer is no. From 33 to the end of 76, when they were allegedly playing second fiddle to professional managers, shareholders of S&P earned compounded annual real returns of 7.6%. तो क्या इससे ऐसा हुआ? क्या 76 के बाद में जो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया उससे शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ी? तो उसके लिए उन्होंने कहा नहीं. इसके लिए उन्होंने एक स्टडी की कि जो S&P 500 कंपनी है, ये एक इंडेक्स है यूएस में, जैसे हमारे निफ्टी और BSE इंडेक्स हैं, उसके अंदर कंपनीज होती हैं. तो इसके अंदर 500 कंपनीज हैं. तो उनके जो रिटर्न्स देखे गए कि क्या रिटर्न्स हैं उनको, तो 33 से 76 तक उनके रिटर्न्स आए एवरेज 7.6%. फ्रॉम 1977 जब से ये मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वाली एरा आ गई टू द एंड ऑफ 2008, दे डिड कंसिडरेबली वर्स और उनके रियल रिटर्न्स 5.9% ही थे. ऑन दिस बेसिस इट इज हार्ड टू आर्ग्यू दैट जेंसन मैकलिन डिड शेयर होल्डर्स अ ह्यूज फेवर. तो इसके कारण ये जो शेयर होल्डर मैक्सिमाइजिंग वाली थियरी थी ये भी फ्लॉप हो गई. That counterintuitive answer begs a provocative follow-up question. If the shareholders were all you care about, would focusing on increasing shareholder value be the best way to make sure? I believe that the answer to the question is also no. To create shareholder value, you should instead aim to maximize customer satisfaction. In other words, Peter Drucker had it right when he said the primary purpose of business is to acquire and keep customers. तो इन्होंने कहा कि इसके कारण अब एक क्वेश्चन है कि अगर आप शेयर होल्डर के बारे में केयर कर रहे थे तो क्या शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज करने से बेनिफिट हुआ उनका? तो उसका आंसर भी नहीं है. टू क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू आपको मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना पड़ेगा. जैसे पीटर ड्रकर एक मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने कहा था कि प्राइमरी पर्पस ऑफ बिजनेस टू एक्वायर एंड कीप कस्टमर, देयरफॉर वी शुड. तो ऑथर ये कह रहा है कि हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना चाहिए. व्हाई नॉट हैव अ डुअल ऑब्जेक्टिव कि हम कस्टमर का भी सेटिस्फाई करें मैक्सिमम और शेयर होल्डर वैल्यू. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑप्टिमाइजेशन थियरी कहती है कि देयर इज नो वे टू साइमल्टेनियसली ऑप्टिमाइज टू डिफरेंट थिंग्स. एक चीज को आप मैक्सिमाइज करोगे, मैक्सिमाइजिंग टू रिलायबल वेरिएबल्स और मिनिमाइजिंग टू अनरिलायबल वेरिएबल्स नहीं हो सकता है.
It is possible to maximize shareholder value given a minimal hurdle for customer satisfaction और maximize customer given a minimum hurdle for, मतलब आप एक चीज मैक्सिमाइज करो, दूसरे के लिए मिनिमम रखो कि मिनिमम मतलब उसमें मैक्सिमाइज नहीं हो लेकिन उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। दैट मीन देयर इज, अगर आपको मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर वैल्यू, तो एक मिनिमम लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड रखनी चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। ये नहीं होगा कि दोनों ही मैक्सिमाइज रहेंगे, ये भी इतना ऊपर बढ़ जाए और ये भी बढ़े, नहीं, वो बोल रहा है ये एक लेवल तक रहेगा और ये बढ़ाना है, और अगर आपको इसको बढ़ाना है तो इसको एक लेवल तक रखना, बट यू कांट मैक्सिमाइज बोथ। ओके, सो तो दिस पैसेज इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट थिंक इसमें ऐसा कुछ भी था। पहले ओनर्स थे, ओनर्स को हटा के उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल मैनेजर्स को आप डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। उसके बाद में उसका भी क्रिटिक आ गया कि इन्होंने अपने ही उल्लू सीधे किए हैं, अपना ही फायदा किया है। तो उन्होंने कहा शेयर होल्डर को मैक्सिमाइजेशन वाली वैल्यू का है। फिर उसके बाद फिगर्स लेके आ गए, फिगर्स से उन्होंने शो कर दिया कि जब से थ्योरी आई है तो ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स को फैंटास्टिक रिटर्न्स आए हैं, बल्कि उनके रिटर्न्स कम हुए हैं। तो अब क्या करना चाहिए, तो अब मैक्सिमाइज करना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? उसने कहा नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू एंड मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। एक को थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन। Which of the following best represents the essence of the passage? Modern capitalism should neither be manager centric nor shareholder centric as it has been. It should be customer centric. Yes, ये बोल रहा है कि it is time we abandoned it and made the shift to a third era customer driven capitalism. Modern capitalism has evolved from being manager driven and later shareholder driven to being customer driven. मतलब ये कह रहा है कि ऑलरेडी हम कस्टमर ड्रिवन पे आ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, अभी हमें वहां जाना है। इट इज टाइम वी अबैंडनड इट एंड मेड द शिफ्ट टू थर्ड एरा। तो ये किसी को लग सकता है बी ऑप्शन, बट दैट बी ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव नॉट येट इवॉल्व टू बी कस्टमर ड्रिवन। करना चाहिए ऐसा बोल रहा है, इट शुड बी, बट हुआ नहीं है, एंड देयरफॉर दिस मेक्स बी ऑप्शन रॉन्ग। मॉडर्न कैपिटलिज्म कैन मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू ओनली बाय मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों चीजें एक साथ मैक्सिमाइज हो ही नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मॉडर्न कैपिटलिज्म गिव्स ग्रेटर प्रायोरिटी टू कस्टमर्स देन शेयर होल्डर्स। नो, नो, बिल्कुल नहीं। और हु आर मोर इंपॉर्टेंट, देखो मोर इंपॉर्टेंट कौन है ये नहीं बताया जा रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोफेशनल मैनेजर्स। दिस इज रॉन्ग ऑन मेनी काउंट्स एंड ए इज द इजी आंसर। सो दिस लुक्स टू बी इजी टू मॉडरेट, बोलूंगा मैं इसको। मॉडरेट इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है। This movement said Berlin means were not to be cleared for the part of a brave new era of economic expansion. Which of the following can be inferred as necessity of this movement? ठीक है, this movement. Entrepreneurs were gradually replaced by managers because they were professional and efficient, unlike the former. तो ये तो आप बोल रहे हो कि ये efficient थे, तो they entrepreneurs were not efficient, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि they were more volatile, right? So not dependable and volatile। दो उसने एडजेक्टिव यूज किए हैं, उसने efficiency नहीं बोला है कि जो ओनर्स थे वो efficient नहीं थे, इसलिए this makes it wrong। आप मन से कोई एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हो, दो एडजेक्टिव दिए गए हैं। कंपनीज नीड मैनेजर्स मोर देन ओनर्स यूज, ऐसा भी कुछ नहीं है कि दे नीड मैनेजर, ऐसा नहीं बोला गया है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप शुड गो सेपरेट वेज इफ कॉर्पोरेशन वर टू एक्सपैंड। The growth of companies beyond a point is better steered by dependable managers than mercurial on them. Yes. तो ग्रोथ ऑफ कंपनीज बियॉन्ड अ पॉइंट वहां पे लिखा हुआ है उसने कि वंस द बिजनेस हैज रीच्ड अ सिग्निफिकेंट साइज, राइट? सो इट वाज नॉट टू बी फियर्ड। So firms would be run by new class who are more dependable and less volatile. That means mercurial। ये जो mercurial means कि volatile means fickle minded। mercurial means जो अपना दिमाग बार बार चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे मैनेजर नहीं होना चाहिए, मैनेजर्स डिपेंडेबल होने चाहिए। इसलिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए। और कब कब कंपनी जब एक पॉइंट के बियॉन्ड चले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डी द करेक्ट आंसर। सो अगेन आई वुड से दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। A critic of Jensen and Mackling's theory would most likely agree. So Jensen and Mackling की theory क्या थी? Jensen and Mackling की theory थी कि मैक्सिमाइज हमें शेयर होल्डर वैल्यू जो है, राइट, ये हमें करना चाहिए, क्योंकि ओनर्स जो है वो उन्हें उल्लू बनाया जा रहा है और जो मैनेजर्स हैं वो अपना ही फायदा देख रहे हैं। तो जेंसन एंड मैकलिंग का जो क्रिटिक है वो इसमें होल्स निकालेगा शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन वाली थियरी में। शेयर होल्डर्स फॉर गेटिंग शॉर्ट श्रिफ्ट फ्रॉम ओनर्स ऑफ एंटरप्राइज, ये तो जेंसन एंड मैकलिफ कह रहे हैं, ये क्रिटिक थोड़ी कहेगा। तो दिस इज रॉन्ग, उल्टा बोल रहा है। शेयर होल्डर्स एक्चुअली हैव बीन बेटर ऑफ सिंस दे डिस्प्लेस मैनेजर्स एज द सेंटर ऑफ द बिजनेस यूनिवर्स। ये तो फिर अगेन उल्टा हो गया, क्रिटिक थोड़ी बोलेगा ये। क्रिटिक बोलेगा कि शेयर होल्डर्स हैव बीन वर्स ऑफ, तो इसलिए ये बिल्कुल ही उल्टा है। कंपनीज फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर मे नॉट ऑफर शेयर होल्डर द बेस्ट वैल्यू। यस, वो कह रहा है कि आप कह रहे हो जेंसन मैकलिंग साहब की शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइज करनी चाहिए, लेकिन कंपनी जो है वो जो ऐसा करेंगी दे मे नॉट ऑफर शेयर होल्डर द बेस्ट वैल्यू, देयरफॉर सी लुक्स टू बी ओके।
while allegedly playing second fiddle to professional manager shareholders for being taken for a ride. ये जेंसन मैकलिंग कह रहे हैं कि प्रोफेशनल मैनेजर जो है वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, ना शेयर होल्डर का देख रहे हैं, ना ओनर्स का देख रहे हैं. देयरफॉर दिस इज नॉट a statement that will be made by a critic, right? So इसलिए ये भी गलत है. सी वो भी आंसर इजी है, ये भी मुश्किल नहीं. Which of the following serves to weaken the shareholder first theory advocated by Michael C. Jensen and VKMS मैकलिंग? तो शेयर होल्डर फर्स्ट जो है, तो यही जेंसन और मैकलिंग की थ्योरी को वीकन करना है. अगेन लाइक अ क्रिटिक, CEOs can push shareholder value up in short burst, hoping to get out before the inevitable resultant crash. तो आप कह रहे हो कि CEOs जो है वो थोड़े टाइम के लिए शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में क्रैश हो जाएगा. तो क्या ये शेयर होल्डर का मैक्सिमाइजेशन हुआ? नहीं, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया. शेयर होल्डर तो फंस गए यहाँ पे बुरी तरह से. दिस श्योरली वीकन्स, विल कीप इट. मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वैल्यू विल मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तो इससे कैसे शेयर होल्डर फर्स्ट वीकन हो गया? इससे तो कुछ नहीं हुआ. CEOs are more concerned about their stock-based compensation and maximizing shareholder value. ये तो this is not going to weaken, because अगर CEOs stock-based compensation पे concerned है, that means they would want to increase their compensation, right? अगर मेरी value stock की $100 है, तो मैं चाहूंगा कि वो 1000 हो जाए. Therefore, in turn, I am trying to maximize shareholder value. So therefore, this is not only going to weaken. This is going to support only. Companies that focus on maximizing shareholder value probably deliver the best returns. तो ये तो सपोर्ट कर रहा है इसकी थ्योरी को, वीगन थोड़ी कर रहा है. दिस आल्सो इज सपोर्टिंग, दिस आल्सो इज सपोर्टिंग, एंड दिस इज इररिलेवेंट, एंड सो ए इज द करेक्ट आंसर. अगेन इजी ही था, तो इसमें क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट या इजी ही थे सारे. तो ये पैसेज हमें करना चाहिए था. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Okay, in the century since the First World War began, there have been bloodier conflicts. There have been wars that seem more pointless and less conclusive, but the First World War remains distinctively stupefying. तो जब से वर्ल्ड वॉर पहला स्टार्ट हुआ था, विच वाज 1914 टू 1918, बहुत ही ब्लडियर कॉन्फ्लिक्ट हुई. वॉर्स ऐसे भी हुए हैं जो कि कोई पॉइंट नहीं था जिनका. मोर पॉइंटलेस मीन्स ही इज कॉलिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आल्सो एज अ पॉइंटलेस वॉर. कोई मतलब नहीं था. लेस कंक्लूसिव. बट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रिमेन्स डिस्टिंक्टिवली stupefying, which means very, very surprising, shocking. An ambitious exhibition at Harry Ransom Center, the World War at this gives us a sense of why. There is more than can be easily grasped. The war resulted in 10 million military deaths, but as you explore the 470 artifacts, diaries, letters, manuscripts, and memoir gathered by the curators, you also begin to understand something about the cultural effects of war and still lengthening shadow. The exhibition, we are told, illuminates the experience of war from the point of view of its participants. It seeks to recover the deeply personal experience of the war. तो ये अब एक हैरी रैंसम सेंटर जो है, वहां पे एक एग्जीबिशन लगी है कि ये जो वर्ल्ड वॉर वन के बारे में, वहां पे 470 आर्टिफैक्ट्स लाए गए हैं. लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस उस वॉर के जो थे उसको लेके उन्होंने डायरी लिखी है, अपनी लेटर लिखे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, मेम्बा लिखे हैं. तो ये सारे के सारे कलेक्ट करके वहां पे डिस्प्ले किए गए हैं. वॉर में 10 मिलियन डेथ हुई थी. तो उसके जो कल्चरल इफेक्ट्स हैं वॉर के, इस पर्टिकुलर वॉर के, वो इस एग्जीबिशन से समझ में आने लगे हैं. हमें बताया जाता है कि एग्जीबिशन जो है वो इल्यूमिनेट करती है एक्सपीरियंस ऑफ वॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स, एंड इट सीक्स टू रिकवर द डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ वॉर. ऐसा कहता है कि ऐसा कहा गया है हमें. तो अगर इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे कहीं पे, द एग्जीबिशन वी आर टोल्ड इल्यूमिनेट, दैट मीन ऑथर मे नॉट बी एग्रीइंग टू दिस. और कोर्ट में दिया गया है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, विल डिस्कस दैट. सो वी आर टोल्ड मीन्स ऑथर डज नॉट रियली से दैट दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू. This emphasis is in keeping with our culture's current preoccupation with personal experience rather than large historical understanding. So this exhibition, while immensely rich and suggestive, can occlude the larger picture by not offering a full sense of context or interpretation of war's origin and effects. अब ये देखो, यहाँ पे बेसिकली बताने की कोशिश ये की जा रही कि अगर हम किसी वॉर या किसी भी ऐसी इवेंट में लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से प्री ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो हम उसकी लार्जर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो है उसको हम कई बार ऑक्लूड कर देंगे, मतलब कि ऑब्सक्योर कर देंगे. तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो काफी रिच और सजेस्टिव तो हैं, लेकिन लार्जर पिक्चर जो है वो हमें शायद ना मिले इससे, कि वॉर क्यों ओरिजिनेट हुआ, उसके क्या इफेक्ट्स थे, क्योंकि हम सिर्फ उसको लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस की तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट एज अ लार्ज हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग. मतलब आप अगर किसी भी वॉर को समझने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ उसके लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, उनके क्या व्यूज हैं, यू मे मिस गेटिंग अ फुल पिक्चर और लार्जर पिक्चर. तो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसके ऊपर जो एग्जीबिशन लगी थी, जहाँ पे 470 आर्टिफैक्ट कलेक्ट किए गए थे लोगों के एक्सपीरियंसेस के बारे में,
तो ये ठीक है, एक तरह से रिच और सजेस्टिव हो सकते हैं, बट दे मे एंड अप नॉट गिविंग यू अ फुल पिक्चर ऑफ द वॉर्स ओरिजिन एंड इट्स इफेक्ट्स. Before 1940, wars were not typically considered pointless, violent enterprises. तो 1940 के पहले वॉर को ऐसा नहीं समझा था कि यार कोई मतलब ही नहीं था, क्या है जबरदस्ती में वॉर. आजकल तो वी कंसिडर ऑल वॉर्स एज पॉइंटलेस ना, दैट दे आर जस्ट टू सेटिस्फाई द ईगो. अभी इसराइल हमास चल रहा है, वहां पे रशिया यूक्रेन चल रहा है. तो वी थिंक दैट दीज आर पॉइंटलेस वॉर्स, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग गोइंग टू हैपन. लेकिन बिफोर 1914 ऐसा नहीं था. दे वर जनरली कंसिडर्ड इंस्ट्रूमेंटल एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर. बिफोर 1940 wars were typically not presumed to be suspect before proven नेसेसरी. तो ऐसा नहीं था कि 1914 में वॉर स्टार्ट होने के पहले आप सोच रहे हो कि यार ये जरूरी है कि नहीं है. ऐसा नहीं था पहले. नाउ विद फ्यू एक्सेप्शन दे ऑफन आर. अब लेकिन ऐसा है कि वॉर के पहले ही कुछ सस्पेक्ट होते हैं वो. दैट मीन्स वेदर इट इज रियली नीडेड. Of course, nuclear weaponry contributed to this change, and the qualifications, other qualifications are needed. Some wars will inspire widespread support, some will be even broadly seen as necessary, but the premises are shifted. तो ऐसा है कि ठीक है, कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि किसी वॉर को सपोर्ट मिले, लेकिन जनरली ये बोलता है नहीं मिल रही, क्योंकि न्यूक्लियर वेपनरी भी आ गई है. Particularly, what about the particular war? What about this particular war contributed to the shift? तो ये शिफ्ट कैसे आया? वर्ल्ड वॉर वन के बाद में शिफ्ट कैसे आया? इट वॉज जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रॉमा एंड डेथ. सिर्फ 10 मिलियन डेथ हो गई उसके कारण नहीं है. लार्ज स्केल ब्रूटैलिटी इज नॉट अ नॉवेल्टी. ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल पे वॉर्स हुए हैं. द न्यू एटीट्यूड सीम टू हैव रिजन आउट ऑफ ग्रोइंग सेंस ऑफ वॉर्स पर्पसलेसनेस लीडिंग टू ब्रॉड डिसएंचेंटमेंट. तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि वॉर की पर्पसलेसनेस लोगों को समझ में आने लगी है. लोगों को लगने लगा कि वॉर से कोई मतलब नहीं है, तो लोग डिसएंचेंट हो गए हैं वॉर से. तो इस ऑथर इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये जो अब शिफ्ट हुआ है लोगों के पर्सपेक्टिव में वॉर को लेके, ये क्यों हुआ है. तो उसको लग रहा है ये इसलिए हुआ है क्योंकि वॉर से लोग डिसएंचेंट हो गए हैं और उन्हें लग रहा है वॉर की पर्पस खत्म हो गई. मच ऑफ दिस इंप्रेशन डिड really did come from personal experience. This is history written from below through the lens of ordinary participants, not political leaders or military strategists. Now, World War One tends to be thought about as it were a product of an out-of-control mechanism for which all governments were responsible. This is also the dominant literary interpretation that we see emerging in these manuscripts. तो ये जो इम्प्रेशन है कैसे आया? तो क्योंकि लोगों ने, अपने ऑर्डिनरी पार्टिसिपेंट्स ने वॉर को के बारे में लिखा है, न कि पॉलिटिकल लीडर और स्ट्रेटेजिस्ट ने. और वर्ल्ड वॉर वन को ऐसा लग रहा था, ऐसा सोचा गया उसके बारे में कि ये आउट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म था फॉर विच ऑल गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. जितने भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और डोमिनेंट लिटरेरी इंटरप्रिटेशन भी है हमें जो दिख रहा है मैन्युस्क्रिप्ट में. एज अ क्रिटिक Paul pointed out, this is a war that, at least for its English-speaking participants, had an unusual connection to the British literary tradition. The tradition shaped interpretations, phrases, and ideas not just for educated officers who came to know, be known for anti-war writing, but to ordinary soldiers. Quantity of English poetry inspired by the war is Islam. तो अब यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेरी ट्रेडिशन से इसका कनेक्शन हो गया अनयूजुअल. कि जितने भी ये लोग थे, दिस ये जो ट्रेडिशन था ब्रिटिश लिटरेरी ट्रेडिशन, इसके कारण जो एजुकेटेड ऑफिसर्स थे वो एंटी वॉर राइटिंग लिखने लगे. ऑर्डनरी सोल्जर्स थे. और क्वांटिटी ऑफ इंग्लिश पोएट्री इस वॉर से जो इंस्पायर हुई वो काफी एस्टाउंडिंग थी. मतलब बेसिकली एक और रीजन था कि लोग अब इसमें एक अलग तरीके से वॉर को देख रहे हैं, क्योंकि जो लिटरेचर एमर्ज हो रहा है वो काफी कुछ शेप्ड है इस ब्रिटिश लिटरेरी ट्रेडिशन से. Hasn't been any other war in which so great a portion of culture's artistic creators shared experience of the conflict. If history is to be told by the victors, here history was told by disenchanted writers and artists. तो क्या एक दूसरा कोई वॉर है जिसमें इस तरह का कल्चर एक्सपीरियंस हुआ है? हिस्ट्री इज सेट टू बी टोल्ड बाय विक्टर्स. जो हिस्ट्री कौन बनाता है? विक्टर्स बनाते हैं. जो विक्टर है वो एक हिस्ट्री लिखता है कि ये वॉर क्यों हुआ, कैसे जीता हमने. लेकिन यहाँ पे दिस हिस्ट्री वाज टोल्ड बाय डिसेंचेंटेड राइटर्स एंड आर्टिस्ट. द एंटी वॉर इन्फ्लुएंस रिमेंस पोटेंट इवन टुडे एज अ कल्चरल फोर्स and an influence on historical thinking. Still, this vision has its limitation. तो अब ऑथर अपने पॉइंट पे आ रहा है कि उसके हिसाब से ये जो विजन है कि आप उसको एंटी वॉर और इस तरह से देख रहे हो आप, इसका लिमिटेशन है. डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस बिकम द मेजर ऑफ थिंग्स वी माइट मिस अ ब्रॉडर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. तो हम एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मिस कर देंगे. सच अ हिस्ट्री माइट कंफर्म द वर्डिक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, बट इट आल्सो माइट ट्रांसफॉर्म इट. वी माइट नाउ से डेथ इन वॉर वाज हॉरिबल बट नेसेसरी. सर्कमस्टेंसेस मैटर, हिस्ट्री अफेक्ट्स आवर असेसमेंट. तो ये जो हिस्ट्री है ये हम मिस कर देंगे अगर हम सिर्फ डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाएंगे. क्योंकि ये जो हिस्ट्री है ये वर्डिक्ट ऑफ एक्सपीरियंस कंफर्म कर सकती है और ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है. हम ये भी कह सकते हैं कि डेथ वॉज हॉरिबल बट नेसेसरी. सर्कमस्टांसेस मैटर, हिस्ट्री अफेक्ट्स आवर असेसमेंट. तो हिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है. तो ऑथर यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हर चीज आपको पर्सनल पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखनी चाहिए. वॉर्स को जो सेकंड सो बेसिकली द मेन आइडिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लोग हिस्ट्री को, जो वॉर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू देखने लगे हैं और उसके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस वगैरह आ गया है.
तो जबकि ऐसा नहीं है, उसमें हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारे असेसमेंट को अफेक्ट करती है, एंड इट माइट ट्रांसफॉर्म इट. तो ऑथर इज नॉट रियली इन फेवर ऑफ लुकिंग एट वॉर फ्रॉम द लेंस ऑफ दिस पर्सनल पर्सपेक्टिव. ठीक है, उसकी अपनी जगह है, लेकिन उसके कारण हमें हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑथर कह रहा है. पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस. व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द एग्जीबिशन. तो एग्जीबिशन जो थी उसके ऊपर क्या है, उसने यही कहा है कि इसमें जो लोगों के व्यूज हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, तो उसके कारण इट कैन, इट इज दो इट इज इमेंसली रिच एंड सजेस्टिव, इट कैन ऑक्लूड द लार्जर पिक्चर. मतलब ये फुलर कॉन्टेक्स्ट नहीं देगा और ऑब्सक्योर हो सकती है पिक्चर, मास हो सकती है पिक्चर. The exhibition helps one to view world war through the prism of personal as well as to focus on its purposeless nature and complicated consequences. तो इसमें वॉर थ्रू द प्रिज्म ऑफ पर्सनल, ठीक है, लेकिन उसका क्या ओपिनियन है ये तो नहीं बताया. ये तो सिर्फ बताया कि ये हमें करने में हेल्प करता है, बट उसका क्या व्यू है ये नहीं बताया. एग्जीबिशन वाज इमेंसली रिच एंड सजेस्टिव एंड corroborated our penchant for personal experience. These are, see, this basically looks, these two options look as if author is trying to be wholeheartedly agreeing with the exhibition and saying that it's really served a good purpose, whereas author ने ultimately क्या बोल दिया है, it can occlude the larger picture by not offering a fuller sense of context. So while this is immensely rich and suggestive, वो ठीक है, तो exhibition emphasizes on personal experiences, but this masks our understanding of war's origin and effect. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कैप्चर करना इस ऑप्शन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. एग्जीबिशन पुट्स कल्चरल इफेक्ट्स इन लाइमलाइट व्हाइल रेलेगेटिंग द पर्सनल इफेक्ट्स टू द फ्रिंजेस. ये तो गलत है बिल्कुल ही. पर्सनल इफेक्ट को फ्रिंजेस पे थोड़ी, वही तो फोकस में है. फ्रिंजेस मीन साइड लाइन पे, पर्सनल एक्सपीरियंस को साइड लाइन कर दिया, ऐसा थोड़ी. दिस इज रॉन्ग. तो दिस वाज अ क्लियर आंसर हियर. 1 and 2 आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि दीज, सो ऑथर का जो व्यू है, ऑथर इज नॉट सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर एग्जीबिशन होल हार्टेडली. ही इज सेइंग व्हाइल इट वाज रिच, immensely rich and suggestive, but it had its own challenges, right? तो इन दोनों में वो चीज नहीं आई है, थर्ड में आई है. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट है. Why did the author set out the phrase seeks to recover the deeply personal experiences or quote in quotes. तो ये हमने डिस्कस कर लिया था. इसको कोट्स में इसलिए लिखा है उसने, एग्जीबिशन वी आर टोल्ड illuminates the experience of war from the point of view, कि ऐसा नहीं है, और इसमें ऑथर इस चीज से एग्री नहीं कर रहा है. टू शो हिज ओन कंटेम्प्ट एंड सरकाजम. अब ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है. कंटेम्प्ट मीन्स आपको एकदम उसको तुच्छ दृष्टि देख रहे हो, उसको यू आर रियली डिसलाइकिंग इट टू दी एक्सट्रीम, और sarcasm, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं. इज नॉट, दे विल नॉट वर्क हियर. टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू दैट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, to suggest that he agrees with his opinion, though it is not his own, and he praises the influence. No, obviously not. To highlight that this is not his point of view and question the influence of personal experience of the war later on in the text. Yes, ये last में भी जैसे इसने लिखा है. This answer is absolutely correct. Again, I would say this is moderate. Difficult. थोड़ा. What aspect of World War One change affected a change in people's assessment? It reiterated the fact that warfare asserted a tendency of domination. नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा है. It drove home the message that wars are purposeless in origin and disastrous. Yes, this looks okay. It gave rise to a new perspective for the war literature and artistic culture. Yes, ये भी ठीक है. It inspired widespread support for wars which are imperative. No, not at all. बल्कि wars के लिए support जो है वो काफी कम हो गया. आप देखो उसमें कई जगह लिखा हुआ है कि वॉर को लोग पर्पस लगने लगे, एंटी वॉर राइटिंग्स होने लगी वहां पे, राइट. तो वॉर्स पर्पसलेसनेस होने लगा और ब्रॉड डिसएंचेंटमेंट इंचेंटमेंट होने लगा. तो ये तो बिल्कुल गलत है. इट हाईलाइट द एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज स्केल ब्रूटैलिटी, ट्रॉमा एंड डेथ. नहीं नहीं, ये तो पीपल्स असेसमेंट में अगर डेथ को कैसे ये करेगा, तो इसको हटा दो. और हमारे पास में 2 और 3, इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन में, ये फिफ्थ में आपको डाउट भी हो रहा हो, तो आपको 2 और 3 मिल गए. 2 और 3 के साथ में फिफ्थ अगर होता तो ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता था, विच दे डिड नॉट गिव. 2 and 3 दिस बिकम द करेक्ट आंसर. तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस की भी हेल्प लेनी चाहिए. 2 और 3 बहुत पक्का करेक्ट है, और ये अगर आपको डाउट हो रहा हो तो यू कैन एलिमिनेट इट, देयर इज नो सच ऑप्शन. So again, I would call it easy to moderate polemics. Which of the following was a factor responsible for new attitude of people? The commentaries of political leaders, not at all. The records of damages and death, not at all. Historical accounts captured through the lens of participant on the ground. Yes, ये लिखा हुआ है. Historical accounts lens के participants on the ground के जो through capture किए गए. So participants on the ground.
यहाँ पे दिया हुआ है, much of the impression really did come from personal experience. This is a history written from below through the lens of ordinary participant, not political first. So historical account kept through the captured through the lens of participant. This looks okay. Literary and artistic figures whose forefathers were biblical, बिल्कुल कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ. So C becomes a correct answer. So again, this was a moderate type of question. सो इफ यू सी, अगर हम पैसेजेस देखें तो पहला पैसेज थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें भी यूजेनिक्स और ये सारी चीजें थी. थर्ड पैसेज में हमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसका किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ थोड़ा समझने वाला था. सेकंड वॉज मच मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो सेकंड शुड हैव बीन डेफिनेटली डन बाय यू. 1 and 3 में से सिलेक्ट कर सकते थे. एंड देन फोर्थ अगेन इज बेस्ड ऑन बिजनेस, विच इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेज है. द बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फोकसिंग ऑन एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ वर्कफ्लोज एंड बिजनेस प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्रोसेस होती हैं. अब ऐसे होगा, अब काम ऐसे होगा, अब काम वैसे होगा. तो बीपीआर एक स्ट्रेटजी है जिससे कारण इसमें एनालिसिस और डिजाइन करते हो. BPR seeks to help companies radically restructure the organization by focusing on ground-up design of their business processes. Re-engineering emphasizes a holistic focus on business objective process related to them, encouraging full-scale recreation of process rather than iterative optimization of sub-process. BPR does not try to change the behavior of workers. तो बीपीआर में क्या होता है, कंपनी अपनी रीस्ट्रक्चर करती है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्राउंड अप डिजाइन पूरी चेंज करती है. री इंजीनियरिंग एम्फसाइजेस होलिस्टिक फोकस ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेसेस. तो आपके क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव है और क्या प्रोसेस उसको रिलेट करती है. फुल स्केल रिक्रिएशन प्रोसेस. सिर्फ आप आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हो प्रोसेस के, मतलब आपके अगर देखा आपने ये प्रोसेस करते हो. प्रोसेस मीन कस्टमर ऑनबोर्डिंग. लेट्स से एक कस्टमर अगर आपके पास में आता है तो आप उसको कैसे सिस्टम में लेते हो, फिर उसको क्या डॉक्यूमेंट भेजते हो, फिर उस पर किस तरीके से इन्वॉइसिंग करते हो, फिर उसको कैसे मटेरियल डिस्पैच करते हो, फिर उसको क्या इन्फॉर्मेशन भेजते हो, फिर उसको कैसे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन करते हो, आप कैसे उसकी कंप्लेंट हैंडल करते हो. ये सब प्रोसेस होती है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग होती हैं, फाइनेंस में अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अकाउंट्स में अलग अलग. तो हर अपने डिपार्टमेंट में प्रोसेस होती हैं, सब प्रोसेस होती हैं. वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक सब प्रोसेस को ऑप्टिमाइज नहीं करते हो, आप पूरी तरह से रिक्रिएट कर देते हो प्रोसेस को. कौन सी प्रोसेस फालतू हैं, कौन सी प्रोसेस वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो कंप्लीट रिक्रिएशन ऑफ प्रोसेस करते हो. आप बिहेवियर चेंज नहीं करने की कोशिश तो वर्कर मैनेजर के, वो नहीं करते. In 1990, Michael Hammer published the article Re-engineering Work Don't Automate, Obliterate in HBR, claiming that major challenge for managers is to obliterate forms of work that do not add value, rather using technology to automate. कई सारे ऐसे काम है जो कि आपको टोटली खत्म कर देने चाहिए, जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं. लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको ऑटोमेट कर देते हैं. At the heart of business engineering lies the notion of discontinuous thinking. Abandon the outdated rules that underlie current business operations. These rules based on assumption about technology, peoples, and goals that are no longer hold. They no longer hold. People and goals that no longer hold. तो आप यहाँ पे सिर्फ ये मत करो कि जो आपके फालतू की प्रोसेसेस हैं, फालतू के काम है, उसको सिर्फ ऑटोमेट कर दो. आप उसको खत्म ही कर दो. तो जो आपके आउटडेटेड रूल्स हैं उनको खत्म कर दो. Re-engineering starts with a high-level assessment of organization mission and customer needs. Basic questions are asked: Does our mission need to be redefined? Are our strategy goals aligned with our mission? Who are our customers? तो इस तरीके से आपकी re-engineering स्टार्ट होती है. Within the framework of this basic assessment of mission goals, re-engineering focuses on organization business processes. As a structured ordering of work steps across time and place, a business process can be decomposed into specific activities, measured, modeled, and improved. It can also be completely redesigned or automated. Re-engineering identifies, analyzes, redesigns with an aim for achieving dramatic improvements in critical performance such as cost, quality, safety. तो आप इसमें जो बिजनेस प्रोसेस है उसको डीकम्पोज करते हो स्पेसिफिक एक्टिविटीज में, उसको कंप्लीटली रीडिजाइन कर सकते हो या एलिमिनेट भी कर सकते हो. आप जो आपको नहीं लगता है कि ठीक है, वो टोटली एलिमिनेट कर दो. और री इंजीनियरिंग जो है वो आप उसके कोर बिजनेस प्रोसेस करते हो ताकि आपके ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट्स हो परफॉर्मेंस मेजर्स में. मतलब ये सब चीजें इंप्रूवमेंट हो, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड इंप्रूव. Many successful companies in the past did not change the business they were in, rather than significantly altered the process they followed, or even replace these all. This process change was accompanied by equally radical change in shape and character of those parts that were involved. They weren't asked how can we do it faster, or how can we do what we do better. Instead, they were asking why do we do what we do at all. We discovered most of the companies examined that succeeded in radically changing one of the business processes, albeit unknowingly due to common set of proven practices. तो ये करेगी जो अच्छी कंपनीज है, सक्सेसफुल कंपनीज है, जिन्होंने अपने बिजनेस चेंज नहीं किया, अपनी प्रोसेस ऑल्टर कर दी. तो वो सक्सेसफुल कंपनीज ने एक ही टाइप के टूल्स यूज किए, कॉमन सेट टूल्स. उन्होंने ये नहीं देखा कि जो चीज हम करते हैं उसको फास्टर कैसे कर दें, या जो चीज हम अभी करते हैं उसको अच्छे से कैसे करें. उन्होंने कहा कि हम ये करते क्यों, वाई डू वी डू इट एट ऑल. और उसके बाद उन्होंने काफी रेडिकली, मतलब बहुत ही फंडामेंटली चेंज कर दिया अपनी प्रोसेस को. तो इस तरह की कंपनी सक्सेसफुल हुई जो कि
ये नहीं देख रही है कि जो चल रही है प्रोसेस उसको बेटर कैसे करें, फास्टर कैसे करें, ऑटोमेट कर दें। नो, आप क्या कर रहे हो पहले तो सोचो कि इसकी जरूरत है क्या, नहीं है तो उसको हटाओ। Re-engineering organization business process is usually fragmented in sub-process tasks that are carried over special function areas. Re-engineering maintains that optimizing the performance can result in some benefits, cannot yield dramatic improvements. तो अगेन आई थिंक ही इज रिपीटिंग इट, सेम चीज वापस बोल रहा है कि जो सब प्रोसेस को आप अगर ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा if the process is fundamentally inefficient or outmoded. Re-engineering focuses on redesigning the process as a whole in order to achieve the greatest possible benefits to the organization and its customers. This drive for realizing dramatic improvements by fundamentally rethinking how the organization works should be done distinguishes re-engineering from process improvements, efforts that focus on functional or incremental improvement. तो आपको रीडिजाइन करना है पूरा प्रोसेस जिससे कि आपको ग्रेटेस्ट पॉसिबल बेनिफिट मिले अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कस्टमर के लिए, और इसमें आप टोटली रीथिंक करते हो. सो अगेन ही इज रिपीटिंग सेम थिंग, ऑप्टिमाइज मत करो, टोटल रीप्रोसेस कर दो, टोटल रीथिंक करो. रीजनिंग कांट बी कैरिड आउट इन स्मॉल कॉन्शियस स्टेप्स, इट इज ऑल और नथिंग प्रोपोजिशन. ये छोटे छोटे स्टेप में नहीं होगा, पूरा पूरा का पूरा उठा के चेंज कर दो. मोस्ट कंपनीज हैव नो चॉइस बट टू मास्टर द करेज. रीजनिंग इज द होप फॉर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द इनइफेक्टिव एंटीक्वेटेड वेज ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस. तो इस पूरे पैसेज में सिर्फ इसने ये बताया कि जो बिजनेस प्रोसेस रीजनिंग होती है इसमें आपको ऐसी जो छोटी मोटी चीजें हैं आपकी सब प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर लो, उसको ऑटोमेट कर लो, ये नहीं है. आप पूरी फंडामेंटली क्वेश्चन करो कि ये जो प्रोसेस है ये वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं कर रही है, वेदर इट इज इन लाइन विद द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड वेदर इट इज इन लाइन विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट. तो आप उसको फिर नहीं है तो आप उसको टोटली एलिमिनेट कर दो. तो आप कुछ प्रिंकरिंग नहीं करोगे, छोटे मोटे चेंजेस नहीं करोगे, आप रेडिकल चेंजेस लेके आ जाओ. Which of the following statement can be inferred from the passage about BPR? The organization which implemented BPR chose radical change over the less painful remedy of steady incremental improvement. बिल्कुल सही यहाँ बोला है उन्होंने, इन्होंने रेडिकल चेंज किया, राइट, फंडामेंटली रीथिंक किया. तो बहुत क्लियरली दिया हुआ है. बीपीआर एम्स टू डिक्रीज मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब ऑटोमेट कर दो हर चीज, ऐसा नहीं है. ये नहीं है कि सिर्फ हर चीज ऑटोमेट कर दो. तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि rather than using technology for automating it, they obliterate forms of work that do not add value. ये नहीं है कि इंसानों से मत कराओ इसको, ऑटोमेट कर दो, ऐसा नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग. इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल नहीं. परफॉर्मेंस ऑफ सब प्रोसेस तो बिल्कुल ही नहीं करेगा ये. यहाँ पे कई बार बोला गया है कि rather than iterative optimization of sub processes, right, it encourages full scale recreation of process rather than तो ये इसको गलत हो गया ये. Business engineering is based on philosophy that would have us become more like them and this involves instant behavioral changes. नहीं, behavioral changes तो नहीं करने हैं ना. ये लिखा हुआ है BPR does not try to change the behavior of workers and managers. So this can be done. A is the right answer. So easy है question, I would say easy question. According to the passage, companies that have implemented BPR would have deliberately used a common set of tools and tactics to change their process and improve their performance. Deliberately used. तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ नीचे यहाँ लिखा हुआ द ड्राइव, ये रहा कि most of the companies examined that have succeeded in radically audited had albeit unknowingly used a common set of tools and tactics. Unknowingly, right? और यहाँ क्या बोल रहा है कि आपने deliberately ये यूज किया है, तो इसलिए ये गलत हो गया. Create a product in high in quality, supplied a product at a fair price and provided excellent service. ये कहाँ लिखा हुआ है कि companies would have created a product high in quality, supplied a product at a fair price? How do we know this? We don't know this. ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है. Significantly altered the processes they followed in the business and asked different and more relevant questions to those asked by other organizations. Yes, ये यहाँ से आप बिल्कुल कह सकते हो कि इन्होंने दूसरे किए, ये यहाँ से बोल सकते हो आप. इनफैक्ट they weren't asking how can we do, how can we, instead they were asking why do we do what we do. This were most of the companies that radically changing. ये यहाँ से सपोर्ट हो रहा है, right? Simplify accomplished tasks to satisfy the internal demands. Absolutely not. Internal demands of the organization satisfy करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं. Again, easy question था ये, I would say. All of the following steps differentiate BPR from process improvement that an organization may undertake except. तो BPR कैसे डिफरेंशिएट होता है, इसमें तो तीन चीजें बताएंगे, एक नहीं बताएंगे. Radical process changes accompanied by equally radical changes in the shape and character of the parts of the organization that were progress. Radical changes तो हैं इसमें, होते हैं, तो इसलिए not the answer.
realize dramatic improvement by fundamentally rethink should be done the holistic progress on business objectives. बिल्कुल बोला है, कई बार बोला है, holistic on business objectives के ऊपर फोकस करना है आपको, कई जगह बोला है. Identifying and abandoning the outdated rules and fundamental assumptions, ये भी बोला है. Decomposing business processes into specific activities, measuring the effectiveness and improving them, बिल्कुल नहीं. This is not what he's saying. कि आप सब प्रोसेस, ये वही बात होगी, सब प्रोसेस को आप ऑप्टिमाइज करने की कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो. This is exactly that, which is not what these guys are doing BPR. So you can easily find all of these three in the passage. According to the passage, so ठीक है, maybe at best medium because sentences वगैरह थोड़े से लंबे. According to the passage, which is the following is not true of BPR. BPR engages in checking the behavior of, बिल्कुल, they don't change the checking a change. They don't change the behavior. So this is not true. यही मिल गया आंसर हमको, ये देखो, doesn't try to change the behavior of advisor. This is a very easy question. यहीं पे मिल गया हमको इसका आंसर, isn't it? BPR does not focus on functional, ये तो करता है. This is true of BPR. BPR believes in eliminating process, yes. Begins with analysis of organization, yes. Easy question. तो आपको एक बार पैसेज का मेन प्रेमिस समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे. सो दैट्स इट. आई थिंक जिसने इसमें से अगर 2 पैसेज ही करने से तो उसे सेकंड और फोर्थ करना चाहिए, जिसे और करना है अगर फर्स्ट और थर्ड थोड़े से आपको समझना पड़ेगा. सो दैट्स इट. I hope you got good marks in this, and with this you go into CAT with a good amount of confidence and optimism. And you can always get in touch with us using these numbers or sending us a mail here or visiting our website. Our NMAT, SNAP, and ZAT crash course or booster course is beginning 25th of November. Our CAT 25 starts December 2nd, and our GDPI VAT starts December 16th. So looking forward to hearing from you. Thank you so much. Have a great day ahead and all the best for CAT 24.